हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसमें सबसे पहले लेट्स स्टडी वन प्लांट एंड देन वील स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हमें अपने आसपास दिखते हैं। सो दिस इज द डायग्राम विच इज मेड इन योर बुक विच शोज द parts of a plant. Now I'll show you the colored version which will make it more clear. So here we have the colored version of the parts of the plant. राइट तो सबसे पहले जब एक प्लांट होता है इट हैज़ टू सिस्टम्स. वन इज द शूट सिस्टम एंड अनदर इज द रूट सिस्टम. रूट सिस्टम इज विच इज बिलो द सॉइल surface. So this should be marked as the soil surface. So this is the soil surface and this the part which is below the soil surface is known as the root system. अब ये रूट्स 3 टाइप्स की होती हैं. वन इज प्राइमरी रूट, जो ये वाली रूट होती है, जो मेन रूट है जिससे बाकी रूट्स पैदा हो रही हैं. देन सेकेंड इज द सेकेंडरी रूट. सेकेंडरी रूट होती हैं ये वाली रूट्स, प्राइमरी से जो रूट आगे पैदा हुई, और सेकेंडरी रूट से आगे जो रूट पतली पतली पैदा होती है वो होती है टर्शरी रूट्स लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंडरी रूट एंड दीज आर टर्शरी रूट्स. देन द पार्ट विच इज अबव द सॉइल सर्फेस इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. अब ये शूट सिस्टम में क्या होगा, एक तो ये होगी स्टेम. इस स्टेम पे जो सबसे टॉप मोस्ट बड होता है एक फ्लावर का, दैट इज कॉल्ड एपिकल बड. दीज आर फ्लावर्स, देन दीज आर लीव्स, दिस इज अ फ्लोरल बड, दिस इज अ स्टेम. सो दिस इज द शूट system of a plant. Now there are various types of plants around us. So here goes the first question, that what are the various systems found in a flowering plant. So two systems are found, that is root system and shoot system. Root system is found below the soil surface and it consists of various types of roots which fix the plant to the ground. And shoot system is found above the soil surface and it has stems, branches. So these are the branches, you can label this as branches, these are the branches. Then there are leaves, flowers and fruits. So we can also make a fruit here, any type of fruit here to show in the parts of the plant. Then there are various types of plants which are mentioned in the book here, like herbs, shrubs and trees. ये different types of हमारे plants हैं. Let's discuss these. So plants are divided into these categories depending on various characteristics या various factors. So if you see page number 53, here they have shown the different types of plants. They are saying that A is herb, B is shrub and C is a tree. Now here they have mentioned that plants with green and tender means soft stem are called herbs. They are usually short and may not have branches. ये छोटे छोटे होते हैं और herbs की branches हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. Some plants develop branches near the base of the stem. The stem is hard but not very thick. These are called shrubs. तो shrubs की branches कहाँ पे develop होती हैं? Base of the stem, stem के base के पास. तो ये वाली category जो है वो होती है shrubs. Then some plants are tall and they have hard and thick stem. और जिनकी हार्ड एंड थिक स्टेम होती है, इनकी ब्रांचेस अपर पार्ट पे होती हैं, विच आर मच अबव द ग्राउंड. सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. नाउ इफ वी लुक एट द क्लासिफिकेशन हियर, तो हाउ कैन वी क्लासिफाई 3 types of plants on the basis of their height? They are herbs, shrubs and trees. So number 1, herbs. They are very small size plant with height even less than 4 feet, that is 1 meter. Herbs have small green and very tender stem. They may not have many branches. They have very short lifespan. That is, they live for 1 or 2 seasons only. And the examples are mustard, radish, carrot, ginger and spinach. ऐसे ही हमारी सेकंड कैटेगरी आ जाती है श्रब्स, जो हर्ब से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं बट ट्रीज से वीक होते हैं. ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, 1 to 3 मीटर इनकी हाइट होती है, मतलब 8 फीट तक. और ये ज़्यादातर बुशेज जिनको बोलते हैं ना हम, वो ये होते हैं. द स्टेम इज हार्ड, इनकी स्टेम हार्ड होती है बट इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती. वो इन श्रब्स 2-3 branches arise near the base of the plant only and hence give a bush like look. तो क्यों bush like look होती है इनकी? Because 2-3 branches है, they grow near the base of the plant. They also live for many years but less than the lifespan of trees. ये herbs से तो ज़्यादा टाइम के लिए जीते हैं but trees से कम टाइम के लिए. इनकी एग्जाम्पल्स क्या है? लेमन, चाइना रोज, जैस्मिन, तुलसी, कॉटन एंड एक्सेट्रा. अदर्स में भी. देन ट्रीज आर वेरी टॉल प्लांट्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स हो जाते हैं, जिनकी हाइट मोर देन 3 meters हो जाती है. दे आर कॉल्ड ट्रीज. दे हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम विच इज कॉल्ड अ trunk, and the stem of these trees have branches which are in the upper part which is much above the ground, and they live for many years. And we know the examples around us: mango tree, banyan tree, peepal tree, shisham tree and etc. Then there are 2 other types of plants which are called creepers and climbers, and this is on page number 54. Plants with weak stems which cannot stand upright but spread on the ground. मतलब ग्राउंड पे देखो, क्रीपर्स, क्रीप से ही पता चल रहा है कि वो क्रीप कर रहे हैं ग्राउंड पे. तो जो ग्राउंड पे क्रीप करते हैं, मतलब वो खड़े हो ही नहीं सकते, आप उनको जितनी मर्जी सपोर्ट दे दो, उनको बोलते हैं क्रीपर्स. वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड होते हैं. बट क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? उनकी भी स्टेम वीक होती है बट अगर उनको सपोर्ट दे दी जाए देन दे टेक द सपोर्ट एंड क्लाइंब अप. सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. सो इफ वी लुक इन डिटेल,
Now what are creepers and climbers? Creepers, they are the plants with weak stem which cannot stand upright and spread along the ground. They do not have tendrils. तो यही एक कारण है टेंड्रिल्स के कारण कि ये इनको सपोर्ट भी दे दोगे ना तब भी ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे अपराइट और ग्रो अपराइट नहीं कर पाएंगे. ये हमेशा ग्राउंड के साथ साथ ही क्रीप करते हैं, जैसे कि लिजर्ड क्रीप करती है या स्नेक क्रीप करता है ना. क्रीप मतलब रेंगना. ऐसे ही ये वाले प्लांट्स भी रेंगते हैं ग्राउंड पे, इसलिए इनका नाम रखा है क्रीपर्स. नाउ टेंड्रिल्स क्या होते हैं? टेंड्रिल्स दे आर द ग्रीन कलर्ड थिन वायरी कॉइल्ड लीफलेस स्ट्रक्चर्स which coil around the neighboring support and help the weak stems to stand erect. अब ये क्या है, क्योंकि इनमें टेंड्रिल्स है ही नहीं है. जैसे आप देखोगे कि ये क्रीपर्स की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, बॉटल गार्ड, पम्पकिन, वाटरमेलन. तो ये जो क्रीपर्स हैं इनमें टेंड्रिल्स होती ही नहीं है. तो अगर टेंड्रिल्स ही नहीं है तो वो टेंड्रिल्स किसके आसपास लिपटेंगी कि वो प्लांट को सीधा खड़ा कर पाएँ. तो आप इसका और क्या एग्जांपल एक याद कर सकते हो कि जितने हमारे मोटू मोटू वाले प्लांट्स होते हैं, सपोज अगर ये फ्रूट्स हमारे पेड़ों पे लग जाते हैं, और कभी पुराने टाइम में क्या होता था, लोग इन पेड़ों के नीचे ही शेल्टर लेते थे. तो इन ट्रीज़ के ऊपर सपोज पम्पकिन लटक रहा होता या वाटरमेलन लटक रहा होता और कोई उसके नीचे सो रहा होता, तो उसके सिर पर तो डुम आके गिर जाना था और वो बंदे का क्या हाल होना था. इसलिए आप याद रख सकते हो कि जो मोटू वाले फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं. वो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो ऊपर पेड़ों पर नहीं उगते, वो नीचे ग्राउंड पे ही क्रीप होते हैं एंड ग्राउंड पे ही ग्रो होते हैं. सो दिस बॉटल गार्ड, पम्पकिन एंड वाटरमेलन. तो इनमें टेंड्रिल्स नहीं है. ऑन दी अदर साइड आप देखोगे ये जो क्लाइंबर्स हैं इनमें देखो ये पतली पतली आपको दिख रही हैं, ये होती हैं टेंड्रिल्स. अब ये इनको अगर सपोर्ट दे दी जाए तो ये अपराइट ग्रो हो जाते हैं. तो इनके एग्जाम्पल्स, व्हाट आर क्लाइंबर्स? सो एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स हमने कर लिए, ग्रास, मिंट, स्ट्रॉबेरी, मेलन, वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर. क्लाइंबर्स दे आर द प्लांट्स विद वीक स्टेम्स विच कैन नॉट स्लाइड अपराइट ऑन देयर ओन, बट अगर उनको सपोर्ट दे दी जाए नेबरिंग स्ट्रक्चर्स की, देन दे क्लाइंब अप. वाई? बिकॉज दे हैव टेंड्रिल्स विच हेल्प देम टू स्टैंड इरेक्ट. और उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? बिटरगार्ड, ग्रेपवाइन, मनी प्लांट. तो ये तो हमारे आसपास ही है मनी प्लांट वगैरह जो हमने देखे भी हुए हैं. पीज और स्वीट पोटैटो भी उसका ये एग्जाम्पल है. नाउ दिस पोर्शन इज रिटन दैट पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम मनी प्लांट, बीन स्टॉक, gourd plants and grapevines have. So they all have weak stem. This we know. Money plant is a climber. Beanstalk is also a climber. Gourd plants. Now if you see here, that bottle gourd is a creeper, but bitter gourd is a climber. And then grapevine we also we have here grapevine is also a climber. ठीक है. So they have, अभी वो सिर्फ ये पूछ रही कि इनकी कैसी स्टेम है, वो वीक स्टेम है. एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, shrub and tree? It is different because they cannot stand erect on their own. They need support या फिर they will grow along the ground. And why do you think some of them need support to climb upward? Because their stem is weak and it cannot stand erect on its own. ठीक है. देन देर इज वन मोर टॉपिक हियर विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 53 अबाउट वीड्स. व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं. आपने देखा भी होगा पॉट्स में भी ग्रो हो जाते हैं, फील्ड्स में भी, या छोटी छोटी अगर हमने क्यारियाँ बनाई हैं, लॉन्स बनाई हैं, ग्रास में भी दे ग्रो. सो दे आर द अनवांटेड प्लांट्स एंड दे कम्पीट विद द मेन प्लांट. कम्पीट का मतलब सनलाइट भी लेते हैं और सॉइल, वाटर, उसमें से भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो जो मेन प्लांट को न्यूट्रिएंट्स या सनलाइट या जो न्यूट्रिशन मिलना है वो मेन प्लांट को नहीं मिल पाता. वीड्स पूरा नहीं मिल पाता. वीड्स भी कुछ पोर्शन उसका ले लेती हैं. That is why we see that gardeners and farmers, they remove weeds from their fields. So here we have a question regarding it, that how are they helpful and why should they be removed and what are the weeds? So they are the unwanted plants that grow in the fields along with the crop plants and they are to be removed. क्यों remove करना है? Because they can be harmful. They compete with the crop plant for sunlight, space, water and minerals. They reduce the purity of the seeds. तो जो भी plant main उग रहा है उसके fruit पे भी effect पड़ेगा because कुछ portion जो उसको मिलना चाहिए था प्लांट को, मेन प्लांट को, वो न्यूट्रिशन का, वाटर का, सनलाइट का, वो ये प्लांट भी यूटिलाइज कर रहे हैं. सो एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स आर बार्ले, बर्मुडा ग्रास, एस्पैरगस. हियर यू कैन सी वी हैव द पिक्चर्स ऑफ हर्ब्स, shrubs and trees. So if we go line wise, herbs are mustard, radish and carrot. Then shrubs are lemon, china rose, jasmine. And then trees are mango, banyan tree, shisham tree. Now we will study the different parts of the plant and their functions. So पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेम. स्टेम क्या होता है? इट इज़ व्हाट इज अ स्टेम? सो इट इज़, ये लाइन आपकी डेफिनेशन बता सकती है. स्टेम इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द सर्फेस ऑफ द सॉइल एंड विच बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेम. अब इन्होंने क्या बताया है कि फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है? देखो इन्होंने बताया है कि एक एक्टिविटी के हेल्प से बता रहे हैं कि स्टेम का क्या फंक्शन है. पहले तो फंक्शन यहाँ पे बता दिया उन्होंने, दैट स्टेम का फंक्शन है दैट इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. The water and minerals go to the leaves and other parts of the plant attached to the stem. मतलब स्टेम क्या होती है? स्टेम अटैच होती है रूट से. अब रूट से मिनरल्स सॉइल वगैरह से खींच के रूट ऊपर लेके जाती है, स्टेम को देती है, स्टेम आगे पास ऑन करती है अपनी ब्रांचेज में और लीव्स में, यहाँ तक कि लीव्स की वेन्स में, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. तो अब ये कैसे प्रूव होगा? सो देयर इज वन एक्टिविटी. इन्होंने कहा है दैट यू टेक अ ग्लास वाटर, रेड एंड ब्लू इंक
एंड अ सॉफ्ट स्टेम, मतलब कोई एक ऐसा प्लांट ले लो जिसकी सॉफ्ट स्टेम हो। एक ग्लास में टेक 1/3, फिल 1/3 ऑफ द ग्लास विद वाटर, उसमें रेड या ब्लू इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल दो। नाउ स्टेम का बेस कट करो एंड पुट इट इन द ग्लास ऑफ द वाटर एंड कीप इट असाइड फॉर सम टाइम। तो क्या होगा, बिकॉज स्टेम का फंक्शन क्या है, स्टेम ने वाटर को एब्जॉर्ब करना है और अपवर्ड मूवमेंट करके उसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना है, ट्रैवल कराना है ब्रांचेस में और लीव्स में। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जो स्टेम है वो उसमें इंक का कलर नजर आएगा। So if it is kept for the longer time, you will find that color will rise in the stem, and if it is kept for the longer time, then this color will also be visible in the veins of the leaves. Leaves की veins जो होती हैं, veins कौन सी होती है leaves की, ये वाली, ये जो veins होती हैं, जैसे हम ये लीफ बनाते हैं तो जो ये वाली veins हैं उसमें भी इंक वाला कलर आपको दिखाई देगा। क्यों हुआ ये, बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विच इज डन बाय द स्टेम। सो ऑल द वाटर्स एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स विच आर अटैच टू द स्टेम। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रॉपरली फंक्शंस डिस्कस करें तो फंक्शंस ऑफ स्टेम क्या है, दैट दे होल्ड द प्लांट अपराइट, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन का मतलब है वाटर को ट्रैवल कराना फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, देन दे कीप द लीव्स इन सच अ वे दैट दे गेट प्रॉपर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड, दे स्टोर फूड इनसाइड देम, जैसे कि जिंजर एंड पोटैटो, ये मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, इसके अंदर ही फूड होता है जिसको हम एज इट इज वेजिटेबल की फॉर्म में यूज करते हैं। देन देर आर मेनी ग्रीन स्टेम्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जैसे ज़्यादातर हमने क्या देखा है कि स्टेम्स जो होती हैं ब्राउन हो जाती हैं जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, बट कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि डेजर्ट प्लांट, कैक्टस, जिनकी ग्रीन स्टेम रहती है और वो ग्रीन स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है। मतलब अभी तक हम क्या कहते थे कि जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है वो लीव्स करती हैं, क्योंकि लीव्स ग्रीन है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि उनमें पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट विच इज़ क्लोरोफिल, जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। बट जो ग्रीन स्टेम है उसमें भी क्लोरोफिल है और वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। एंड द थॉर्न्स, और जो कैक्टस में थॉर्न्स होते हैं वो रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं ताकि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इन द डेजर्ट्स। ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो कैक्टस पे थॉर्न्स होते हैं वो लीव्स की जगह पे होते हैं ताकि लीव्स, जब धूप पड़ेगी तो लीव्स में से पानी इवेपोरेट होगा, बट अगर थॉर्न्स होंगे तो उतना पानी वाटर लॉस नहीं होगा। So this is the function of a stem. Now there is one more additional information which is given, that what is a node and internode. ये भी stem से related ही है। तो आप देखोगे that this is a sugarcane या bamboo plant भी ऐसा ही होता है। इसमें nodes होते हैं ना। What are the nodes? Nodes होते हैं ये वाला part जो आपको छोटी छोटी lines नजर आती हैं जहाँ से और leaves या branches grow होती हैं plant में। So node is that point on the stem from where the leaves and branches of a plant arise, जिससे additional leaves या branches grow होती हैं। And what is internode? Internode क्या होता है, ये दो nodes के बीच का part। So how can we write it properly? Internode is a part of the stem between two successive nodes, like in sugarcane and bamboo plants. Nodes and internodes are very clear. तो ये दो examples हैं sugarcane and bamboo, इसमें आपको nodes and internodes clearly दिखाई दे जाएंगे। Then the next part of the plant is leaf. Leaf क्या होती है? अब देखो हम बहुत अपने आसपास प्लांट्स अगर देखें तो लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स। अब ये कैसे अटैच होती हैं दी स्टेम से? सो दे आर अटैच टू द स्टेम बाय विद अ पार्ट कॉल्ड पेटियोल। सो व्हाट इज अ पेटियोल? पेटियोल इज दैट पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक स्टेम है या ब्रांच है, इसके साथ लीफ ये यहाँ से अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड पेटियोल। या फिर अगर हम इधर भी देख सकते हैं, दिस इज अ ब्रांच एंड हेयर दिस पार्ट जहाँ से फिर मेन लीफ शुरू होती है, उससे पहले वाला जो स्टॉक टाइप होता है उसको बोलते हैं हम पेटियोल। देन द ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। तो ये वाला जो पूरा ब्रॉड पार्ट है लीफ का, या हम इसको बोल सकते हैं, ग्रीन कलर कर दे तो दिस ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड लेमिना। ठीक है, तो ये हम अपने आसपास लीव्स में देख सकते हैं। नाउ देयर इज वन एक्टिविटी दैट पुट अ लीफ अंडर द वाइट शीट ऑफ पेपर। एक वाइट शीट ऑफ पेपर के नीचे आप लीफ रख लो एंड देन होल्ड इट लाइक दिस। यू हैव टू होल्ड इट एंड देन यू हैव टू रब द पेंसिल टिप या क्रेयॉन ले लो एंड रब इट ऑन द पेपर। तो क्या होगा उससे? यू विल गेट द इम्प्रेशन ऑफ द लाइन्स ऑफ द लीफ ऑन द पेपर। तो ये जो लाइन्स ऑफ लीफ होती हैं इसको बोला जाता है वेन्स। तो डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड मिडरिब। सो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी, व्हाट इज अ मिडरिब? दैट सो मिडरिब इज अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। तो दिस प्रोमिनेंट लाइन, this is called a midrib. Here we have labeled it, this is a midrib. Then the design made by the veins in a leaf is called leaf venation. अब जो डिज़ाइन लीफ में वेन्स बनाती हैं, जैसे ये एक डिज़ाइन है, दिस इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अब ये डिफरेंट लीव्स का डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन होता है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक इन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिब, मतलब कि अगर ये मिडरिब है हमारी, अगर यहाँ पे साइड्स में नेटवर्क लाइक ऑफ डिज़ाइन बन जाता है, नेटवर्क की तरह या नेट की तरह, तो इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। बट अगर हमारी मिडरिब के अराउंड, अगर हमारी मिडरिब ऐसे जा रही है और इसके आसपास स्ट्रेट लाइंस बनती हैं, जो दूसरी वेन्स है वो भी पैरेलल है टू वन अनदर। पैरेलल का मतलब ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के सामने सामने, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती या आगे बढ़ा दो तो कर भी नहीं सकती, इसको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। पहले तो लीफ वेनेशन क्या है? जो वेन्स एक लीफ पे डिज़ाइन बनाती हैं। अब ये वेनेशन टू टाइप्स की है, एक होती है रेटिकुलेट जो नेटवर्क टाइप ऑफ डिज़ाइन बनाती हैं वेन्स, दूसरी होती है पैरेलल वेनेशन जो एक दूसरे के पैरेलल होती है वेन्स एक लीफ में। दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल वेनेशन।
नाउ लेट अस डिस्कस द अदर पार्ट्स ऑफ अ लीफ. इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, तो अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ आर लीफ एपेक्स. सो दिस इज द लीफ एपेक्स विच इज द टिप ऑफ द लीफ. सो द टिप ऑफ द लीफ इज जनरली पॉइंटेड एंड इज कॉल्ड द लीफ टिप और द लीफ एपेक्स. एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट. देन मिडरिप हमने डिस्कस कर लिया, द मेन वेन विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिडरिप. देन लीफ लेमिना, द होल ब्रॉड सर्फेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना. तो ये पूरा या तो इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं या लीफ लेमिना बोलते हैं. देन पेटियोल, इट इज अ स्टॉक. तो ये जो स्टॉक होता है जो ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, जो ब्रांच के साथ लीफ को अटैच करता है, विद विच द लीफ इज अटैच टू अ स्टेम और अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट. या फिर पेटियोल कनेक्ट्स लीफ ब्लेड टू द प्लांट स्टेम. ठीक है. देन दिस इज द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लीफ. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले बुक से दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ लीफ. अब एक लीफ के क्या फंक्शंस हैं देखो. इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि आप एक हर्ब ले लो, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग्स लो एंड अ थ्रेड ले लो. अब इस एक्टिविटी को आपने डे टाइम में करना है ऑन अ सनी डे. सो यू हैव टू यूज हेल्दी एंड वेल वाटर्ड प्लांट विच हैज़ बीन ग्रोइंग इन अ सन. एक हेल्दी प्लांट लेना है आपको. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू इनक्लोज द लीफी ब्रांच ऑफ अ प्लांट इन अ पॉलिथीन कवर लाइक दिस. तो जो लीफी ब्रांच है आपने उसको पॉलिथीन कवर में बंद कर देना है एंड टाई अप इट्स माउथ विद अ थ्रेड. तो उसको थ्रेड से बंद कर दो ताकि हवा वगैरह ना जा पाए अंदर. नाउ टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलिथीन बैग कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन. और एक पॉलिथीन बैग आप खाली सन में रख दो. ठीक है. आफ्टर अ फ्यू आवर्स वी विल ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द कवर्स. अब जो पॉलिथीन बैग के जो अंदर का पार्ट है, इनर का पार्ट है, उसमें हमें क्या ऑब्जर्व होगा, तो वी विल सी द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. किस में, कौन से वाले में, वी विल सी द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन दैट पॉली बैग जिसमें हमने अपनी ब्रांच को पैक किया था. जो हमारे प्लांट की ब्रांच थी, जिस पॉली बैग में उसको पैक किया था, उसमें हमें ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेंगे. ये क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है दैट वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन. प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. तो अब जो प्लांट्स की लीव्स है वो वाटर रिलीज करती हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर में. ठीक है. इसीलिए जहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फ्रेशनेस फील होती है. Right. So now what do you observe from this activity, that the cover with the twig has water vapors inside it, whereas the cover without the twig shows no water vapors. तो इस एक्टिविटी से हमें ये रिजल्ट निकला. दिस शोज दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट्स. तो इससे हमें क्या पता चला कि प्लांट्स डू द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन. तो इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है दैट गिव एन एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट्स. सो दिस इज द मेन वन फंक्शन ऑफ अ लीफ. और अदर फंक्शंस क्या होते हैं लीफ के, दैट दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड ड्यूरिंग विद यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का आउटकम क्या होता है, दैट व्हाट इज द आउटकम, एक तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, दूसरा फूड इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्लांट. ठीक है. तो इसमें हम वी कम टू दिस क्वेश्चन दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीव्स. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपायरेशन. दैट लीव्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू इट्स स्टोमेटा. अब ये जो लीव्स में पानी कहाँ से रिलीज कर रही है, लीव्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये हमने पुरानी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जिसके थ्रू वो ब्रीथ करती हैं, यू कैन से. तो दीज स्मॉल पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा. एंड दिस प्रोसेस जिसके थ्रू वो वहाँ से स्टोमेटा में से वाटर रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. दूसरा फंक्शन लीव्स का क्या है, दैट दे मेक फूड फॉर द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. देन थर्ड is that they help in exchange of gases like oxygen and carbon dioxide through stomata. तो gases भी कहाँ से निकल रही हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही, और कोई सोर्स नहीं है जिसके थ्रू gases रिलीज हो. Another function is reproduction. ये आपकी बुक में नहीं मेंशन्ड है. In some plants leaves bear reproductive buds which produce new plants. इसका एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. तो ब्रायो phi phy lum LLUM. So this is the example of bryophyllum. This is a diagram of bryophyllum leaf. इसमें क्या होता है कि जो लीफ रिप्रोड्यूस करती है, मतलब लीफ से ही और आगे की आगे जो प्लांट है वो पैदा हो रहा है. जनरली हम क्या, जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमें सीड्स डालने पड़ते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्शन कि इसमें लीफ से ही और ब्रायोफाइलम के प्लांट्स उग जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं. राइट. देन हाउ डू वी, अगर हमारे को लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है टू राइट अबाउट लीफ वेनेशन, हाउ कैन वी राइट. तो लीफ वेनेशन इज द डिजाइन और पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ. इट इज ऑफ 2 टाइप्स, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन क्या है, इट इज अ पैटर्न फॉर्म बाय द वेन्स इन द लीफ विच आर पैरेलल टू द मिडरिब एंड ईच अदर. एक दूसरे से भी पैरेलल है और मिडरिब से भी पैरेलल है. रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, पैटर्न फॉर्म बाय द वेन्स विच लुक्स लाइक अ नेटवर्क ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिब. Then plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. तो fibrous roots कौन सी होती हैं हमारी, ये अभी आपको दिखाती हूँ मैं पिक्चर. Then plants having leaves with reticulate venation have tap root system. तो ये आगे रूट सिस्टम में भी हमने पढ़ना है. आप अभी के लिए आप समझ लो कि ये है हमारा फाइब्रस रूट्स, जो नीचे गुच्छे की तरह फाइबर्स की तरह रूट्स होती हैं. तो जिन प्लांट्स की फाइब्रस रूट्स होती हैं उनकी
पैरेलल वेनेशन होती है, और जिनकी ऐसा टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम मतलब कि एक मोटी सी रूट है, उसके आसपास प्राइमरी और सेकेंडरी रूट है। ऐसे प्लांट्स की, जिन प्लांट्स की टैप रूट होती है, उनकी वेनेशन क्या होती है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क की तरह। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अब हमारे पैरेलल वेनेशन के ग्रास, मेज, वीट, बैम्बू, राइस, पाम ट्री, अगर आप इनकी लीव्स देखोगे तो पैरेलल लाइंस होगी वेनेशन। बट जो रेटिकुलेट है वो भी हमारे को आम तौर पे दिख जाती है अपने आसपास, रोज, चाइना रोज, लेमन, मस्टर्ड, मैंगो, पीपल, बैनियन, एटसेट्रा. There is one activity which is given in the book which shows the presence of starch in a leaf. तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेनेशन दो, तो ये एक्टिविटी मेंशन करनी है. पहले समझते हैं क्या है कि हम क्या ले रहे हैं. लीफ, वी आर टेकिंग अ लीफ, स्पिरिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास. वॉच ग्लास मतलब जैसे ग्लास होता है ना जो हमारी वॉच के ऊपर होता है, जो थोड़ा कर्व वाला होता है, वो वाला ग्लास. एंड आयोडीन सोल्यूशन, तो जैसा हमारा वो होता है ना, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उस टाइप का ग्लास चाहिए हमको. अब हमने करना क्या है? टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें लीफ डाल दिया, उसमें हमने स्पिरिट डाल दी. इतनी स्पिरिट डालनी है कि लीफ शुड कम्प्लीटली इमर्स इन दैट स्पिरिट. नाउ वी हैव टू प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर. अब हमने टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर डाला और उस बीकर में हाफ पानी भर दिया. क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हमने इसको बॉईल करना है. इसको बोलते हैं डबल बॉयलर. तो जनरली आप देखोगे जब हम चॉकलेट्स भी बनाते हैं तो उसको भी डबल बॉईल किया जाता है. डायरेक्टली चॉकलेट को हीट कर दो तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है. तो ऐसे ही ये डबल बॉईल हो रहा है, मतलब पहले पानी गर्म होगा, पानी की हीट से ये स्पिरिट गर्म होगी. अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द स्पिरिट कैन कैच फायर वेरी इजीली. इट हैज़ एल्कोहल कंटेंट. तो अगर हम इसको डायरेक्टली रख देंगे तो दिस टेस्ट ट्यूब विल बर्न. तो दैट इज़ वाई वी विल डूइंग दिस डबल बॉइलिंग. So place the test tube in the beaker half filled with water. Now heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit. तो जब हम गर्म करेंगे इसको, बीकर को हम अब उस पर रखेंगे फायर पे, तो बीकर से पानी गर्म होगा, पानी से स्पिरिट गर्म होगी, स्पिरिट गर्म होगी तो पत्ते पे भी असर पड़ेगा, लीफ का ग्रीन कलर निकल के स्पिरिट में आ जाएगा, पूरा ग्रीन कलर. और देन टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट. अब ग्रीन कलर आ गया. अब जब ग्रीन कलर खत्म हो गया लीफ में से, नाउ टेक आउट द लीफ केयरफुली. केयरफुली क्यों? क्योंकि अभी वो स्पिरिट गर्म होगी तो आपको टोंग्स यूज़ करने हैं. एंड वॉश इट विद वाटर. अब उसको पानी से वॉश कर दो. नाउ प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास. तो आपने जो वॉच वाला ग्लास लिया या मैग्नीफाइंग ग्लास है आपके पास, उसके ऊपर रख दो. एंड नाउ पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट. तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व नाउ? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये पेल लीफ था, मतलब लीफ का कलर खत्म हो गया ग्रीन कलर, तो वो पेल सा रह जाएगा, लाइट येलो सा में भी. तो जब हम उसके ऊपर, अब हमने वॉच ग्लास पे रखा और हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला, सो द पेल लीफ विल चेंज इनटू ग्रीनिश ब्लू कलर विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च या फूड ऑफ द प्लांट इन द लीफ. तो ये जो ग्रीनिश ब्लू कलर होगा ये शो करेगा कि लीफ के अंदर स्टार्च है, और स्टार्च क्या होता है? फूड ऑफ द प्लांट. तो जब लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं वो फूड बनाती हैं अपना और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं. हमने ये टेस्ट करा देखने के लिए कि वाकई वो फूड या स्टार्च. अब वो फूड किस फॉर्म में बनाती हैं? वो बर्गर पिज्जा नहीं बना रही, वो क्या बनाती हैं? स्टार्च. इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फूड उनकी लीव्स में स्टोर हो जाता है. तो ये एक्सपेरिमेंट हमको बताएगा दैट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अब इसमें एक पॉइंट हमने बहुत ध्यान रखना है कि जब हम इसको गर्म कर रहे हैं स्पिरिट को, वी हैव टू क्लोज दिस टेस्ट ट्यूब. वी हैव टू क्लोज दिस टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द टॉप विद द कॉटन प्लग, जो ये टेस्ट ट्यूब है. अदरवाइज क्या होगा? दिस स्पिरिट कैन कैच फायर बिकॉज ऑफ दिस बॉइलिंग वाटर. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस. एक बार हमने लिखा भी हुआ है. वी विल टेक अ ग्रीन लीफ एंड बॉयल इट इन अल्कोहल इन अ डबल बॉयलर. दैट इज in the outer beaker there is water and water is being heated directly where the leaf is being boiled in the alcohol or spirit in the boiling tube as shown in this figure. So this is the figure. ये बीकर लिया, बीकर में पानी डालना, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉटन प्लग जरूर लगाना है, नहीं तो वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, अल्कोहल या स्पिरिट, एंड इट कैन कैच फायर. और लीफ को इतना इमर्स करना है दैट इट इज completely immersed in the spirit. Now we will place this on a burner and boil this, heat this beaker. तो यहाँ पे ग्रीन लीफ लिया. नंबर 2 इज दिस. देन नंबर 3 क्या हो जाएगा? लीफ विल बिकम पेल. एंड नंबर 4 हम उसको एक पेट्री डिश में या हम वॉच ग्लास में रख रहे हैं एंड हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं. नंबर 5 क्या होगा? दैट पेल लीफ टर्न्स ग्रीनिश ब्लू विच विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैट लीफ. सो हियर on boiling, leaf goes pale whereas alcohol turns green या spirit turns green. We will stop heating it further. Note, this is very important point कि we will put cotton plug on the boiling tube while boiling the leaf in alcohol. Otherwise, the fumes coming out of the boiling tube will catch fire. Now we will remove the cotton plug from it and take out the pale leaf from the boiling tube with a tweezer. Tweezer से लेना है because alcohol hot होगी तो you can burn your hands. We will wash it. That is the pale leaf को हम wash करेंगे with water and put it in a petri dish or watch glass and we will pour a few drops of iodine solution. Now, if this pale leaf changes to greenish blue, it will show that there is a presence of food, that is starch, in the leaf.
In this similar example we did last time for the potatoes also, presence of starch in potatoes. So potatoes get this starch from their leaves and store it. Now what are the, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, leaves के function आ गए, that they prepare food in the presence of sunlight and a green colored substance. Then they also use water and carbon dioxide for this. For the preparation of food they use water and carbon dioxide. They have green substance which is called chlorophyll, and this process of making the food is called photosynthesis. And during this process oxygen is released and food जो prepare होता है it is stored in different parts of the plant. और वो food किस form में store होता है, starch की form में. So we have seen the stem supplies लीफ विद वाटर. हमने देख लिया पीछे ये वाले एग्जाम्पल में कि जो स्टेम था, स्टेम के थ्रू क्या आ रहा था लीफ में, वाटर. द लीफ यूजेस दिस वाटर टू मेक द फूड एंड लीव्स ऑल्सो लूजेस द वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीफ में पानी कहाँ तक कौन पहुँचा रहा है, स्टेम, बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, एंड लीव्स ये वाटर को लूज कर रही है किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपायरेशन. अब वो कह रहे हैं कि जो स्टेम में पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो ऑब्वियसली स्टेम किससे अटैच है, रूट से, तो वो पानी रूट से आ रहा है. तो नेक्स्ट वी विल स्टडी द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, या व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ अ प्लांट, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट्स, कि रूट्स का क्या काम है प्लांट में. इससे पहले कि हम रूट स्टार्ट करें, यू कैन सी हियर दैट दिस इज अ लीफ विच शोज रेटिकुलेट वेनेशन, नेटवर्क लाइक system, network like veins, and this is the diagram of a leaf which shows parallel venation. So these veins are parallel to the midrib and they are parallel to each other. Now let's start the root system. Now root system को समझने के लिए there is सबसे पहले one activity given in your book. This activity shows the importance of roots in a plant. So इसके लिए हमें क्या चाहिए, we need 2 pots, some soil, then a खुरपी or a digging tool, then we need a blade or a pair of scissors and water. अब इसमें हमने क्या करना है, दिस एक्टिविटी इज डन इन द ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट, दिस यू कैन लीव. इसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक 2 प्लांट्स. सो दिस एक्टिविटी इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूट्स. तो हमने क्या करना है, 2 प्लांट्स लेने हैं सेम तरह के फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, और उनको हमने रूट के समेत डिग आउट करना है ग्राउंड में से. नाउ वी हैव टू टेक केयर कि उसकी रूट्स टूटनी नहीं चाहिए प्लांट की, हमने ध्यान से उसको रूट आउट करना है. अब हमने 2 पॉट्स लेने हैं, उनका नाम रख देंगे पॉट ए एंड पॉट बी. पॉट ए में हम एज इट इज़ विद रूट्स प्लांट को प्लांट करेंगे इन द सॉइल, बट जो पॉट बी में हम प्लांट करेंगे, देखो यहाँ रिटर्न है प्लांट विद रूट्स ए एंड देन बी इज प्लांट विदाउट रूट्स. तो बी में हमने उसकी रूट्स को काट के फिर हमने उसको मिट्टी में प्लांट करना है. सो देयर हियर वी हैव रिटन दैट दीज आर रूट्स एंड दिस इज अ ग्रीन प्लांट एंड दिस इज अ ग्रीन प्लांट एंड ओनली शूट सिस्टम इज देयर, नो रूट सिस्टम. सो वॉट वी विल सी कि थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद अदर प्लांट पॉट बी में डाल दिया हमने, वी विल वाटर देम रेगुलरली, और हम उसको 1 हफ्ते के लिए ऑब्जर्व करेंगे. नाउ व्हाट विल वी ऑब्जर्व आफ्टर 1 वीक, क्या ऑब्जर्व करेंगे, सो हियर दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट आफ्टर अ वीक, 1 हफ्ते बाद क्या होगा, वी विल ऑब्जर्व दैट अ प्लांट इन पॉट ए इज शोइंग हेल्दी ग्रोथ. क्यों, क्योंकि उसके साथ रूट थी. वेयर एज प्लांट इन पॉट बी, यहाँ पे प्लांट के लिए वीड वर्ड यूज करा है, तो यू कैन यूज प्लांट ऑल्सो. वेयर एज द प्लांट इन पॉट बी इज ड्रूपिंग, मतलब उसकी लीव्स जो हैं वो नीचे को झुक जाएंगी, बिकॉज द रूट्स आर कट. This shows that roots are very essential for the growth of a plant. So here you can see we have labeled it कि इसकी जो leaves हैं वो droop कर जाएंगी, येलो हो जाएंगी और नीचे को गिर जाएंगी, बट ये वाला प्लांट हेल्दी ही रहेगा. So this shows कि roots एक प्लांट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे what are the functions of the roots. तो ये एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन होगी. यू कैन नोट दिस डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो और टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन नोट दिस डाउन so that you can write the answer properly. Now the next activity is roots की importance show करने के लिए, या that what exactly happens when we put the seeds in the soil, या put the seeds, take some seeds and try to grow them. So we would require the seeds of gram, मतलब चने ले लो, cotton ले लो, या maize ले लो, 1 कटोरी ले लो, and some water. Take 2 कटोरीज, place some wet cotton in them. Now put 3 to 4 seeds of gram in one and maize in the other. तो एक में आप ग्राम डाल लो, एक में आप कॉर्न्स डाल लो, मतलब मेज क्या होता है, कॉर्न्स, छल्ली के दाने. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, थोड़ा वाटर स्प्रिंकल करना है अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स. तो ये तो हम रोज करते भी होंगे अपने घर में व्हेन वी हैव स्प्राउट्स. सो आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन. तो यंग प्लांट्स मतलब सीडलिंग्स विल ग्रो, दिस वाइट स्ट्रक्चर विल ग्रो, दिस इज कॉल्ड अ यंग प्लांट. तो ये कॉटन में ग्रो हो जाएंगे. नाउ इज इट ईजी टू सेपरेट कॉटन फ्रॉम दीज रूट्स, नो, क्योंकि अगर हम ट्राई करेंगे तो ये रूट्स जो है, ये जो ग्रो हुई हैं वाइट स्ट्रक्चर, ये टूटना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्प्राउट. तो दिस मीन्स कि जो सीड है उसने वो स्प्राउट हो गया है एंड इट इज़ रेडी टू ग्रो इनटू अ प्लांट. सो वी कैन नॉट पुल द प्लांट्स, दैट इज़ वाई. सो दिस इज़ द रीज़न कि जब हम प्लांट्स को सॉइल में लगाते हैं, हम सॉइल में से उनको आसानी से रूट आउट नहीं कर पाते, हमें उनको डग आउट करना पड़ता है. सो दिस इज़ बिकॉज रूट helps to hold the plant firmly in the soil, so they anchor the plant to the soil. Anchor मतलब वो support करते हैं प्लांट को सॉइल में खड़े होने में हेल्प करते हैं. So this is one of the function of the root of the plant. and उसके लिए ये एक्टिविटी उन्होंने शो करी कि इसका मतलब जैसे कि इसकी स्प्राउट्स
अड़ गए थे कॉटन में एंड इट वॉज नॉट ईजी टू डीटेंगल देम, ऐसे ही जब प्लांट्स सॉइल में ग्रो हो रहे होते हैं तो उनको सॉइल में से रूट आउट करना मुश्किल होता है. Now look at the roots of the gram plant you have pulled out from the cotton in the previous activity. तो कैसा लग रहा है वो? तो देखो, this is A is the root of the maize plant and B is the root of the gram plant. So here this is the root of the gram plant. अब इसमें different देखो, ये seed था, this is a gram seed. ये क्या हो गया? Germinate हो गया. Germinate का मतलब इसमें से पौधा उग गया है, छोटा सा plant, baby plant. And this is called प्लूम्यूल. तो ये जो छोटा सा प्लांट उगा है, बेबी प्लांट, इज कॉल्ड अ प्लूम्यूल. तो ये बेबी प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर है. एंड दिस इज कॉल्ड रेडिकल. एक्चुअली इट इज कॉल्ड रेडिसेल. लेट मी चेक. सो दिस जो स्ट्रक्चर हमारा ग्रो हुआ जिसको हम स्प्राउट बोलते हैं, इस स्प्राउट को अब दो सिस्टम्स में हमें समझना है. जो टॉप वाला पार्ट है जहाँ से प्लांट उगेगा, मतलब शूट सिस्टम बनेगा, वो होता है प्लूम्यूल. और जो बॉटम वाला पार्ट है जो रूट्स बनाएगा उसको बोलते हैं रेडिकल. RADICLE. इट इज़ कॉल्ड रेडिकल. ओके. सो ये हमारा जो स्प्राउट एक पैदा हुआ उसका हमने 2 पार्ट्स में स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड किया. Now the next part is that we have to understand different types of roots या the root systems of a plant. So this is the diagram which clarifies कि 2 type of root system होते हैं. एक है जिसमें एक मेन रूट उगती है, उसके साथ छोटी छोटी रूट्स उगती हैं. तो वन इज़ दिस जहाँ पे एक मेन रूट होती है और उसके साथ साथ छोटी रूट्स उगी हुई हैं. वन इज़ दिस जहाँ पे कोई मेन रूट नहीं है, सब एक फाइबर की तरह, गुच्छे की तरह रूट्स उगी हुई हैं. सो दिस इज़ द टैप रूट सिस्टम एंड दिस इज़ फाइबरस रूट, जहाँ पे फाइबर्स की तरह गुच्छा बन जाता है रूट्स का. तो फर्स्ट इज़ द टैप रूट सिस्टम एंड second one is the fibrous root system. So this is in tap root system there is one main root, ये वाली जो नीचे दिख रही है सॉइल सरफेस के नीचे. उसके साथ जो थोड़ी और बड़ी बड़ी दिख रही हैं इसको टैप रूट बोलते हैं या प्राइमरी रूट बोलते हैं या मेन रूट भी बोलते हैं. जो उसके साथ छोटी छोटी और रूट्स उगी हुई हैं थोड़ी सी बड़ी वाली, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट. और जो सेकेंडरी रूट के साथ छोटी सी और उगी हुई है उसको बोलते हैं टर्शरी रूट्स. तो 3 टाइप ऑफ रूट्स हैं इन दिस टैप रूट सिस्टम. प्राइमरी या मेन रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट. ये आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा. सो दिस इज़ द सॉइल सरफेस. ये ऊपर स्टेम जा रही है, नीचे रूट है. तो ये है प्राइमरी रूट जो मोटी वाली रूट है. उसके साथ ये वाली जो है ये है सेकेंडरी रूट. देन सेकेंडरी रूट के साथ जो पतली पतली रूट्स हैं जो और ज़्यादा सॉइल के अंदर चली जाती हैं, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी. ये वाली जो पतली वाली रूट्स हैं दिस आर टर्शरी रूट्स. और फाइब्रस रूट्स में क्या है? सॉइल सरफेस है, नीचे फाइबर लाइक रूट्स हैं और ऊपर हमारा स्टेम पोर्शन है. राइट. सो इसमें ज़्यादा लेबलिंग नहीं है बट इसमें हमें लेबलिंग बहुत ध्यान से करनी है. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम. तो हेयर वी हैव द एक्सप्लेनेशन. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेडिकल पार्ट. तो हमने पढ़ा था रेडिकल पार्ट यहाँ पे कि जो ये वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, जब एक सीड स्प्राउट होता है तो जो टैप रूट है वो कहाँ से इमर्ज होती है? रेडिकल पार्ट में से. और फाइब्रस रूट कहाँ से होती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. तो ये बेस है स्टेम का, ये जो फाइब्रस रूट है इस बेस से कहीं से भी उग जाती है. बट जो स्टेम के रेडिकल पार्ट से जो उगती है रूट उसको टैप रूट बोलते हैं. इट हैज़ अ प्राइमरी रूट. हेयर प्राइमरी रूट अपीयर्स बट डाइज आफ्टर सम टाइम. फाइब्रस रूट में थोड़े टाइम के लिए अपीयर होती है, उसके बाद मर जाती है. फिर सारा फाइबर ही फाइबर की तरह गुच्छा नजर आता है. फ्रॉम दिस प्राइमरी रूट स्मॉलर रूट्स अराइज विच आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स एंड स्टिल स्मॉलर रूट्स अराइज विच आर कॉल्ड टर्शरी रूट्स, जो हमने डायग्राम में देखा. Here there is in fibrous roots there is no distinction between primary and tertiary roots, primary, secondary and tertiary roots. The tap root system goes deep into the ground. तो ये वाला जो tap root system है ये ग्राउंड में देखोगे आप बहुत डीप चला जाता है बिकॉज रूट्स का आगे नेटवर्क बन रहा है एक तरह से. बट जो फाइब्रस रूट सिस्टम है इट रिमेन्स नियर द सॉइल सरफेस. तो जो प्लांट्स का टैप रूट सिस्टम है क्या उनको ईजी होगा निकालना? नहीं. सो द प्लांट्स विच हैव टैप रूट्स दे कैन नॉट बी ईजिली पुल्ड आउट, बट द प्लांट्स विच हैव फाइब्रस रूट्स दे कैन बी ईजिली पुल्ड आउट फ्रॉम द सॉइल. तो द प्लांट्स विच हैव टैप रूट उनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? कैरेट, बैल्सम रोज, चाइना रोज, ग्राम्स. तो ये अगर आप देखोगे कि जब हम कैरेट या रेडिश भी हम निकालते हैं उसमें से सॉइल में से तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत जोर लगता है. बट जब हमने ग्रास या मेज निकालना है तो वो ईजिली निकल जाता है. और बनाना. ठीक है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट्स. नाउ देर इज वन दिस गिवन question that Bujo has a brilliant idea that if he wants to know what kind of root a plant has, he need not pull it out, he can just have a look at its leaves. तो इसका मतलब कि हमें लीव्स की वेनेशन देख के ही, लीव्स का पैटर्न देख के, वेन्स का पैटर्न देख के हमें पता चल सकता है कि कौन सा प्लांट होगा, मतलब कैसी रूट्स होंगी उस प्लांट की. तो ये हमने समझा था पहले भी कि अगर एक लीव्स की रेटिकुलेट वेनेशन होगी तो दिस मीन्स कि उसकी रूट्स कौन सी होंगी? टैप रूट सिस्टम. और अगर एक प्लांट की, एक लीफ की पैरेलल वेनेशन होगी तो दिस मीन्स उसकी रूट्स कौन सी होंगी? फाइब्रस रूट्स.
तो पैरेलल वेनेशन वाले की रूट होगी फाइब्रस, जिसको कि पुल आउट करना इजी है। रेटिकुलेट वेनेशन वाले की रूट्स कौन सी होंगी, टैप रूट सिस्टम वाली रूट्स, उसको पुल आउट करना सॉइल में से डिफिकल्ट होगा, वो हमें पूरी की पूरी रूट ही बाहर निकालनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट हियर इज दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ रूट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट्स। सो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि रूट्स कहाँ होती हैं, बिलो द सॉइल सरफेस, तो सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं। दे हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। दे चेक सॉइल इरोजन, कैसे वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं ताकि सॉइल इरोड ना हो पाए, सॉइल बह ना पाए। रूट्स फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड, प्लांट को फिक्स करके रखती हैं। रूट्स स्टोर फूड इनसाइड देम, दीज आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स। तो कई रूट्स अपने अंदर फूड भी स्टोर कर लेती हैं, जैसे कि कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, रेडिश, बीट रूट। सपोर्टिंग रूट्स ऑफ बैनियन ट्री, तो कुछ रूट्स होती हैं स्पेशल जिनको बोला जाता है सपोर्टिंग रूट्स। दे गिव सपोर्ट टू दी हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जैसे कि बैनियन ट्री की आपने देखा होगा बहुत बारी रूट्स ऊपर उग के ब्रांचेस में से फिर नीचे गिरती हैं। तो बैनियन ट्री का जैसे जैसे साइज बड़ा होता है वो इतना ज़्यादा फैलेगा कैसे, वो रूट्स ऊपर से ब्रांचेस की तरह गिर के फिर से सॉइल में चली जाती हैं और सपोर्ट करती हैं उस बैनियन ट्री को। सो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस ऑफ बैनियन ट्री। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूट्स का क्या फंक्शन है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड स्टेम क्या करती है, स्टेम उस वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड टू लीव्स। और फिर लीव्स क्या करते हैं, लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट। दिस फूड ट्रैवल्स, अब ये फूड कहाँ ट्रैवल करता है, थ्रू द स्टेम। दिस फूड थ्रू स्टेम के थ्रू ही ट्रैवल करती है एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो सम एडिबल रूट्स विच वी ईट आर कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, जो हमने पहले डिस्कस करे हैं, एग्जाम्पल्स टर्निप एंड टैपियोका इज ऑल्सो अ रूट। So here one important statement is given that a stem is like a street with two-way traffic. Explain this. So how can we explain this? देखो stem नीचे रूट से, जब सॉइल सरफेस में प्लांट लगा हुआ है तो रूट्स वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, स्टेम उसको पूरा ट्रांसफर करती है अपवर्ड मूवमेंट से। फिर जब लीव्स खाना बना लेती हैं तो खाना ट्रांसफर करती हैं रूट्स तक नीचे। तो इसका मतलब स्टेम क्या करती है, इट इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक, ऊपर भी ट्रैफिक जा रहा है, नीचे भी ट्रैफिक आ रहा है। तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस, तो हम कहेंगे स्टेम इज अ टू वे ट्रैफिक। हाउ, दिस कैन बी द क्वेश्चन। सो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स गो अप थ्रू द स्टेम टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, then the food prepared by the leaves come down to the roots and other parts of the plant through the stem. So this is how stem is like a street with two-way traffic. Now the next portion is structure of a flower, which we will discuss in the next video. So stay tuned and I hope आपको ये chapter अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा.